Yep. So we are live. Welcome to my YouTube channel. Today I Thank have with you. me a very dear friend, Mariam. Mariam and I go back all the way to Nixer College, Karachi, back in 2014 and 2015. And in this session, we'll be talking about studying in Europe. Because if you have to talk about studying in Europe to someone else, I think Mariam is the go-to person. She has had a lot of experience. Just to cover it up, Mariam secured an Hungarian stipendium scholarship, and she went from Nixer for her bachelor's towards initially towards in Hungary, and her whole bachelor's covered. I think she went to Poland as well, Wroclaw, Poland, and Brussels, Belgium as well. Yeah, that's Right. my master's. Yeah. Right now she's doing her master's and in transnational migration, Yes, and she is in Sofia, Bulgaria. And she's right also now. interning at PRIO, that's in Priya. Oslo. Yeah, Yeah. Prio. And is it about migration as well, or is it about like? It's basically a think tank which caters to all peace research. It's basically Peace Research Institute Oslo, right? And it caters to all peace building or development, it's like social issues. जो होते हैं. So my social dynamics is a department there which caters to migration. So I'm an intern there in the migrations department, in short. Okay, and you're mainly dealing with people coming from the third world, from our part of the world to Europe, trying to enter Europe, and Well, their issue. uh, the मेरी जो intern है, so what my intern position states is that I'm supposed to assist with researchers. So at the moment, I'm a research assistant at Prio, and we're working on a research which is supposed to be published within the next 5 years, and it looks at migration trajectories. It looks at the social, कैसे लोगों की social mobility, it moves upward through migration. So in that Okay. research, we are covering four major cities, that is Karachi, Mumbai, Hanoi, and Manila. And I am basically handling Karachi and Mumbai. And I have another colleague of mine who is a research assistant as well, who is looking after Hanoi and Manila. That actually sounds really interesting. Read It that on is, your LinkedIn, and to be honest, like after coming here, uh, मेरा भी यही mood होता है कि I might just go towards academia, because like there's so yeah, much to talk about. There's so many good think tanks. yeah, I know about the Netherlands here, like कुछ यहाँ पे भी हैं, like there's TNI and others who yeah, are doing so good work, and but then these guys are thinking like hundreds of years ahead. मतलब हमारे yeah, यहाँ तो कोई exactly. decade long का भी think tank नहीं. पता है And जब, yeah, go ahead. yeah, you go ahead. Like, जब मैं पाकिस्तान, so I'll just quickly also give my introduction again very yeah, briefly. sure, So sure. after graduating from Nixer, I spent 1 year in Zabist because I was supposed to go to Turkey, but things didn't really work out. वहाँ पे मेरा depression phase it started that I was supposed to study abroad, and the thing is that मैंने किसी university में पाकिस्तान में apply नहीं किया था, literally nowhere. And at the end ये सारा Turkey का issue हो गया, सब कुछ हो गया. So last moment I had Zabist, so I had to apply there. And मुझे ये भी नहीं पता था that I would get it or not because I literally gave the test without studying because I didn't even know test में आना क्या है. So I don't know how luckily I got into Zabis because I remember the test was so shit. But I spent a year there, but I did not give up. I was like, no, I'm gonna still try very, very hard. And my dad, he saw this ad for Stipendium Hungaricum in the newspaper. He was after me since Nixer कि इसमें apply करो, इसमें apply करो. And मैं कहती अब मेरे grades like they're A, B, B, like who would take me with these grades for a fully funded scholarship? I don't think that it's going to be possible. And when I was in Zabis, that scholarship came up again, and I was like, okay, you know what? Why not? Let's just apply. And I think I dedicated. Oh, and the cost of the whole scholarship was just 300 rupees, 300 rupees. That's all it That's costed. yeah. Exactly. That's what I tell people that you should apply. There's no harm in applying. But I remember I dedicated like 2 full weeks. अच्छा HEC के through ये scholarship होती है, Higher Education Commission पाकिस्तान के through. And उन्होंने सिर्फ 2 हफ्ते पहले बताया था that to get this scholarship you have to sit for a test. आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. एंड आई गॉट सुपर स्कैर्ड. मैंने पहले एससीटी दिया हुआ था, मेरे बहुत गंदे मार्क्स आए थे. मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं वापस दूं, कि एससीटी भी मैंने ऐसी शौक में दिया था, Yeah. मुझे याद है. तो आई रिमेम्बर आई डेडिकेटेड 2 full weeks फॉर दैट टेस्ट. मेरी मैथ बहुत शिट है, मैंने मैथ पे ज्यादा फोकस किया, मैंने जनरल नॉलेज पे ज्यादा फोकस किया था. एंड जब टेस्ट का रिजल्ट आया था, सो आई वाज द ओनली फीमेल पार्टिसिपेंट सेलेक्टेड फ्रॉम द होल सिंध, अर्बन एंड रूरल, फॉर बैचलर्स. That's So yeah. I was
there was a lot of pressure on me because it was like you're representing Pakistan and you're also representing Sindh. And I was like, oh my God, don't do that. And eventually things started to work out, you know, and this scholarship was actually very, very, uh, jitna bhi, I think jitna bhi I should be thankful. I don't think that it's enough because this scholarship has been really nice, has been very helpful, very fruitful for my career, for myself as a person as well. And just some tips about this, not tips, just some details about the scholarship for people who are watching. It's called the Stipendium Hungaricum Scholarship, and it's a fully funded scholarship with your health insurance covered, your tickets covered, your so you basically get a small stipend for your accommodation as well. Now that I think that this scholarship might not be enough for people living in Hungary because prices have gone up, चीजें महंगी हो गई. मेरे टाइम पे तो था अच्छा खासा मैनेज हो जाता था. हम सारे पाकिस्तानी क्या करते थे, हम लोग पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ लेते थे फैक्ट्रीज में, रेस्टोरेंट्स में, कैफेज में. सो टू बी ऑनेस्ट मैं तो शौकिया शुरू किया था because मुझे शौक था कि सब लोग काम कर रहे हैं तो कैसा होता है. लेकिन मेरा दिल लग गया, so I continued working in a restaurant for around 2 years and it was really nice. The extra money that I got, I saved it for my traveling. And I'm not bragging, I swear to God I'm not bragging, but till now I have visited 32 countries and I'm done. Like I'm very, very, I'm I've just been here for a month and मैं अभी तक सिर्फ बर्लिन गया हूँ and people are telling me कि यार you're too fast, तुम्हें मतलब अभी थोड़ा break लगाना चाहिए. And मैंने कहा why should I do that? But like trust just to me. just a follow up question on that, because Yeah. I've actually met some HEC people जो यहाँ Groningen में PhD कर रहे हैं, और मेरे लम्स में 2-3 प्रोफेसर्स भी थे जो प्योरली Yeah. कुछ ऐसे हैं जो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स, कुछ ऐसे हैं जो पार्शियल एचईसी पार्शियल यूनिवर्सिटी फंड पर पीएचडी कर रहे हैं, कुछ Yeah. और भी हैं. सो दे टोल्ड मी दैट आफ्टर वी आर डन विद दिस वी हैव टू गो बैक टू पाकिस्तान and we have two choices. Either we can pay HEC जितने सारे पैसे HEC ने हम पे लगाए हैं and we can just get rid of our whole bond and just travel wherever we want, or we have Yeah. to stay in Pakistan. Do you Yeah. know something about this? Like, is it? So with HEC, yeah, that's true. Even I signed a bond with HEC that is करना होएगा, and if you don't abide by the rules, you have to pay 20 lakh if I'm correct. I don't remember, it's quite सही से. So I feel like that there are some loopholes in the contract, and I also know some people who have been blacklisted, especially जो PhD वाली scholarship mainly. they also because हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह से फ्रॉड Yeah. करने में तो इतने अच्छे हैं कि इन्होंने Yeah. बहुत सारे लोगों का तो नाम ECL पर है पाकिस्तान के अंदर, और वो यहाँ आगे पीछे यूरोप में कहीं घूम फिर रहे हैं और they can't go back to their Exactly. yeah. So इसके अंदर काफी लूपहोल्स हैं. HEC के अंदर सबसे पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट में, स्पेशली जो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था, आई थिंक लाइक सबका सेम कॉन्ट्रैक्ट था. हमारे उसमें ये था कि you have to come and serve in the government sector or whatever for at least 2 years if you're going for your bachelor's. If you don't abide by the rules, then you have to pay this fine. So सबसे बड़ा लूप होल या सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि बंदा आगे बैठ तो जाए 2 साल तक, पर अगर जॉब ना मिले तो बंदा क्या करे. You True. can't just waste 2 years of your career or your life just like that. कि आप फेंक नहीं सकते उनको. सबसे I always recommend people कि whatever you're doing, if you're under this kind of bond, let HEC know what your further plans are. For instance, you are free to pursue further studies if you want to. आप you don't have to, you know, आप किसी उसमें नहीं है. तो until now I've let HEC know that I was back in Pakistan, but now I'm going back for my studies, my master's. And they have approved That's an everything. Erasmus Mundus Masters, like Yeah. So coming to my master's as well, I'm doing the fully funded master's under the Erasmus Mundus scholarship program, and my program is MITRA, which is migration, transnational migrations. And my major is in illegal or irregular migration, and my thesis is going to focus on understanding the reasons of why Pakistani migrants migrate to Belgium irregularly, or in other words, illegally. Okay, that makes sense. We have covered some of your academic achievements. So I just want to talk about something because I'm not as experienced as you. Have just been here for like 2-3 months now, but it will come slowly. Don't worry. Yeah, I actually stumbled upon 4 or 5 Erasmus Mundus scholars who are in Groningen right now. Their host city will be Groningen. And for their upcoming semesters, they'll be going to Copenhagen. Some of them will go to Sweden somewhere, and Brussels and everywhere, all over Europe. Yeah. But for them, like when I asked them that what's your thing, what are your plans to do, and most of them are just clueless about their future. And मुझे बस एक जवाब मिलता है कि बस अभी हमें यहाँ रहना है और बस हमें like
it's very depressing, and I want to cover this fact. And the only thing I get from them is बस वापस नहीं जाना, बस यहीं पे रहना है और देख लेंगे कर लेंगे, and they have no vision about क्या करना है आगे उनको, and they just want to live in Europe or somehow just enter Europe for the sake of it, may it be Lithuania or Latvia or some other region in the Yeah. Balkans. बस एक दफा हम घुस गए तो बस हमारी जिंदगी जो है ना, मतलब like they have this weird, not these guys but even people in Pakistan, like they have this weird Yeah. thing कि बस एक दफा यूरोप में घुस गए तो बस like we're done for our whole lives. How do you Yeah. reflect on that? What do you think? How is that perception flawed? Like, what is Okay, it? for people who think that they're completely clueless, कि उनको कुछ नहीं पता कि आगे क्या करना है, that is completely okay. That's fine because हमें नहीं पता होता कि हमने अभी कल क्या करना है, परसों True. क्या करना है. That is completely fine. But this perception कि हमने बस यूरोप में घुसना है, हमने वापस नहीं जाना, I feel like that क्यों किसी और बंदे का हक मार रहे हो फिर इस तरह, अगर आप इस सोच के साथ आए हो. जैसे जब मैं बैचलर्स के लिए when I came to Hungary, right, I was very clueless. I was like, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ क्या करना है, मैं क्या करूंगी, मैं क्या कर रही हूँ अपनी जिंदगी के साथ. Literally I was like that. उसके बाद when I so अपने बैचलर्स के दौरान I worked with the Hungarian police as a translator, right, for the Pakistani migrants that were coming, so Urdu, English and Nice. Hungarian, because मैंने Right. थोड़ी सी Hungarian सीखी. So that basically gave me a very सीधा direction that okay, this is something that I really like, and this is something I can see myself doing in the future as well. So That's you know, actually very nice. Like, I, you're actually giving back to the people who are kind of stuck here or in a limbo. exactly, Battle because hai. to be honest, with migration, I think that every person has a right to migrate for whatever reasons that they think are valid or जो भी. Valid. लेकिन जिस तरह मैंने पाकिस्तानी एक होता है ना कि इवन तो कभी कभार दिल करता है कि जोर का चपेड़ लगाओ, एक एक रख रख के जो सारे आते हैं ना इस तरह इलीगली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये हैं आपके बंदे. आप चाहे That's कुछ भी true. कर लो, यू विल ऑलवेज हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर True. योर पीपल. इवन तो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं इनको रख रख के जूतों से मारूं, चपेड़े मारूं, पता नहीं क्या क्या करूं, लेकिन I just want to add something to it क्योंकि मेरा yeah, of course. इतना experience तो नहीं है, but I met this guy from Athens and हम लोग कहीं dinner पे थे and मैंने Yeah. सब अपने आप को introduce करा रहे थे, नया नया masters में सब students आए हुए हैं, तो told him Yeah. I'm from Pakistan. He's like, bro, we have a small Islamabad in Athens. We call that area Islamabad क्योंकि वहाँ पे सारे पाकिस्तानी भरे हुए हैं, उनके पास कोई legal status नहीं है, वो ना वापस जा Yeah. सकते हैं ना fully हमारी society में integrate कर सकते हैं, बस वो कहीं बीच के हैं. Or then I realized, then I actually researched a bit and I met a few Pakistanis diaspora in the Netherlands, and Yeah. the stories they've told me about to what extent people can go to just to live here. I've heard stories about same-sex marriages. I've heard stories about divorcing on paper and not divorcing क्योंकि हमारा वो obviously वो एक इस्लामिक वाला एलिमेंट है, और फिर वो on paper या Yeah. लीगली डिवोर्स करके एक और शादी, Yeah. किसी को लीगली पाकिस्तान से, मतलब आपको नेदरलैंड्स आने के लिए स्पाउसल वीजा के लिए आपको बस वो एक डच एग्जाम देना पड़ता है इस्लामाबाद जाके, और Yeah. फिर मतलब, और आई एम श्योर ये तो खैर नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है जो कि वन ऑफ द मोस्ट लाइक रिचेस्ट Developed. ऑफ द यूरोपियन Yeah. कंट्रीज है, बट लाइक ईस्टर्न यूरोप में आप चले जाओ तो इस तरह की आपको इतनी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं. आई एम श्योर बल्गारिया में भी होगा एंड अदर भी होगा, Yeah. but like why would you do this to yourself? मतलब why would you like put everything at stake? मतलब ना वापस जा सकते हो ना आ सकते हो. See, इधर मैं बताती हूँ. तो द ईस्टर्न यूरोप का जो हमारा ये आया ना टॉपिक, ये एलिमेंट, ईस्टर्न यूरोप बेसिकली इनके लिए सिर्फ एक ट्रांजिट कंट्री है. ईस्टर्न यूरोप में इनका गोल नहीं होता रहना. सो ऑल ऑफ दीज पाकिस्तानी irregular migrants who are coming from Pakistan, they're coming on foot and by boats. They're transiting through Turkey and then Iran, is tarah karke Iran, Turkey, is tarah karke they're coming, and then they enter the Mediterranean. And their main goal is to reach either Italy, France, Germany, Norway, is tarah ki inki goal countries hoti hain. To reach these countries, they have to transit through the Eastern European, the Balkan bloc, The as Balkan we can bloc, call. yeah. And Bulgaria, right now I'm in Bulgaria, and Bulgaria is supposedly known to be the most lethal, or you could say the most cruelest country of all, जो जिस तरह वो treat करता है irregular migrants को. इतना के there have been reports कि कितने ज़्यादा migrants have, Pakistani migrants especially, have lost their life due to frostbite, due to them being stripped naked by the police officials in extreme harsh weathers like cold हो गया, and they've told to कि आप पैदल अब वापस जाओ टर्की के border पे. So why they choose Turkey का border, Turkey and Bulgaria का border? Yeah. Because ये by land है, and Turkey and Yeah. Greece is by sea. By sea is very, very, very Very hard. dangerous.
But coming here is also very dangerous because you don't know if you'll survive by the hands of the police officials or not. So इनका जो मेन होता है वो ईस्टर्न यूरोप में रहना नहीं होता. एंड ये काफी वैसे लंबी डिबेट हो जाएगी अगर मैं डिस्कशन हो जाएगी अगर मैं बताऊं. Yeah. ईस्टर्न यूरोप का सारा ये जो एथेंस में भी सारे रुके हुए हैं. ग्रीस ये लोग आते हैं इसमें बिकॉज ये लोग टर्की के थ्रू ग्रीस में एंटर करते हैं. एंड दे डोंट ईरान वांट मतलब वो कोयटा या ताफ्तान बॉर्डर तेहरान फिर वो या उस तरह आगे उस एग्जैक्टली. तरफ निकल जाते हैं. And ये लोग मतलब कि they're over there, they're staying in camps and they're not living in the best conditions. अभी ये मेरी जो प्रिया वाली internship है इससे पहले I was working for DRC, that was the Danish Refugee Council. वो एक virtual था, telephonic वो था. उस that was based in Bosnia. तो उससे भी I was talking to a lot of Pakistani migrants who were being sexually abused, men who were being physically assaulted, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे थे. And you know, like they wanted someone to talk to in Urdu, but because of the pandemic situation, I wasn't able to go there. So हमारी सारी telephonic conversations होती थी. तो the exact same questions that you raised, okay, why are they coming this way? This is exactly my question, and this is exactly why I'm in this field today. And this is exactly why I'm so motivated to कि बस करना भी है और शादी भी हो गई है अभी. तो everyone is like तुमने शादी कर लिया पढ़ाई छोड़ दोगी और मेरा दिल कर रहा है मैं Yeah. सर पे बंदूक मार लूं कि शादी होने से ये इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए. So Unfortunately, ये हमारे यहाँ मसले तो हैं. To yeah, add on to it, I'm sure you've met a lot of diaspora in Europe जो मतलब यहाँ yeah, 90s और एक मुझे तो खैर एम्स्टरडेम में एक अंकल मिले जो 37 ईयर से रह रहे हैं और वो yeah, सिर्फ पंजाबी बोलते थे और डच बोलते थे. अंग्रेजी तो मैंने नहीं सुनी yeah, उनके मुंह से. yeah, खैर यही लाइक जो मेरे कश्मीरीज yeah, मीरपुरीज कश्मीरीज बहुत यहाँ पर हैं क्योंकि वो माइग्रेट कर गए थे जब डैम्स बन रहे थे yeah, हमारे यहाँ. आई जस्ट वांना ऐड समथिंग एल्स क्योंकि जो yeah, स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं और जो कल को यूरोप आएंगे, yeah, मैं जब यहाँ आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा पोलिटिकली अवेयर ठीक है हूँ, बट लाइक मेरा एक परसेप्शन था कि जो हमारा डायस्पोरा है वो टू एन एक्सटेंट बेहतर होगा इन टर्म्स ऑफ देयर थॉट प्रोसेस एंड इन टर्म्स ऑफ देयर थिंकिंग. बट टू बी ऑनेस्ट मरियम, आई हैव मेट पीपल हेयर, नॉट हेयर एज वेल बट जनरली, जो मुझे क्योंकि मैं ट्विटर स्पेसेस भी बहुत सारी स्पेसेस ज्वाइन करता हूँ डायस्पोरा की, and to be honest their thought process and their thinking, and when I go back home और मेरे अपने दोस्त, मेरा अपना सर्कल, मेरी फैमिली, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, I personally feel back home people are much more progressive, at least in Karachi या लाहौर या हमारे निक्सर के environment में. but यहाँ तो कुछ लोगों की बड़ी what do you say बड़ी वो उन्होंने अपने आप को एक छोटे से बबल में रख लिया और उनको लगता है कि अगर उस बबल से निकलेंगे yeah, उनकी एग्जिस्टेंस at itself as an immigrant वो क्राइसिस में आ जाएगी. मतलब that's हालांकि they completely abide by the true. laws, but Yeah, उनके लिविंग इन यूरोप, लाइक चलो अमेरिका में टेक्सास में रह रहे होते तो मैं मानता भी चलो ठीक है कंजर्वेटिव यूजर ओके, बट लाइक यहाँ पे रह के इतनी ज्यादा बैकवर्ड थिंकिंग, लाइक हाउ, व्हाट डू यू थिंक? I agree with that. To be honest, जितना भी diaspora that I've met up till now, I completely agree with that. And this is something that I fail to understand as well. This is in Hungary, जब मैं Hungary में थी, I met a lot of people from the UK as well, Pakistani diaspora from the UK, Norwegian diaspora, UK, Pakistani Norwegian diaspora कर लो. I'm actually married to a Norwegian Pakistani right या now. So I'll try to talk a bit about from that perspective. जितने भी वैसे मैंने UK के देखे ना, मैंने to be honest मुझे हैरत यूके होती है वाले कि तो इतना बैकवर्ड कोई कैसे हो सकता है. लाइक हम पाकिस्तानी पाकिस्तान से आए हैं, हमारी इतनी बैकवर्ड थिंकिंग नहीं है, लेकिन आप बाहर के मुल्क में रह के इतने एक फ्री कंट्री में रह के आपकी ऐसी थिंकिंग कैसे हो सकती है. मैं या इतनी ट्रू. ज्यादा लाइक आई हैव read so many articles. If this happens in Pakistan, to be honest, it's understandable. But when I see this happening in the UK, I'm like ऐसा कैसे कोई इस मुल्क में कैसे कर सकता है. लाइक forced marriages, फोर्स घर के अंदर मैरिजेस. लड़कियों को इतनी औरतों को इतनी इजाजत नहीं है बाहर जाने की. मतलब कि हमारे हमारे माशरे में तो फिर भी लाइक हमारे सर्कल चलो कर लो. It also, to be honest, depends on your upbringing and also your education. For instance, I would say that we are educated people. Yes, we come from good educational backgrounds as well. या But थोड़ा ऐसे ये भी देखो कि जो हमारा डायस्पोरा गया है इधर बाहर के मुल्कों में, they weren't very educated. They just left. हमारा जो गेस्ट वर्कर स्कीम निकला था इन द 1930 मुझे याद नहीं है कौन सा इसमें था, जिसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा मोस्टली गया था इंग्लैंड. वो सारे क्या थे, वो लोग इतने एजुकेटेड 60s लोग थोड़ी ना थे. 70s में भी गया था, या लेकिन 60 70 या हाँ, लेकिन अगर आप उनकी सेकंड जनरेशन से मिलो ना, जो उन्होंने कभी पाकिस्तान में छुट्टियों में गए होंगे, उनके भी पाकिस्तान के बारे में जो व्यूज और जो उन वो भी दुनिया को मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम लेंस से देखते हैं. और पाकिस्तान या में भी 95% लोग दुनिया को मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम लेंस नॉन से मुस्लिम देखते से हैं. या लेकिन
सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जिन्होंने कभी पाकिस्तान में जो कभी रहे नहीं, जो कभी उस तरह Yeah, इंडोक्ट्रिनेट नहीं हुए, जिनको मतलब हम तो खैर बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ लिख गए, बट मतलब yeah, और दिस होल आइडिया के I've seen this, I think it's part of your research as well, कि जो हमारा पूरा खारियां और झेलम वाले रीजन में जो yeah, हवेली बनाने का कॉन्सेप्ट है कि खुद yeah, नॉर्वे में कुछ और कर रहे होंगे और वहां हमारी खाली हवेली बनी रहे। आई सॉ डॉक्यूमेंट्री ऑन दिस। और yeah, yeah, ये स्पेशली यूरोपियन डायस्पोरा के लिए बड़ा रेलेवेंट है। अमेरिका में जो रहता है उसको हवेली yeah, बनाने का उनके इतना लिए, शौक नहीं है डीएचए में, yeah, लेकिन यूरोपियंस जो मिड पंजाब, खारियां, झेलम और इन एरियाज में रहते हैं, yeah. उनको तो बस घर बनाना है वहां पे, क्योंकि फिर वो पूरी गली में सारे बच्चे यूरोप गए हुए हैं तो सबके घर बन गए, तो हमारा घर नहीं बनेगा, हालांकि वो खाली पड़ा रहता देखो है। इसमें आपकी आ जाती है स्टेटस भी. You have to maintain your status within the Pakistani society and also in the Norwegian Pakistani society. एक the third, second, third generation वाली बात की ये, to be honest, I've thought on this as well, not just from the Norwegian Pakistani Norwegian diaspora perspective, but also from other, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा diasporas देखे हैं यूरोप में, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा डिफरेंट कम्युनिटीज देखी हैं डिफरेंट कंट्रीज में, पाकिस्तानी कम्युनिटीज. तो लिटरली जब मेरा जो इसके बारे में वो था ना कि एक स्टेटमेंट है वॉट एवर, लाइक आई थिंक दैट ये जो सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन भी क्यों इतनी, इनका माइंड क्यों इतना बैकवर्ड और क्यों इतना क्लोज है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट जनरेशन दैट केम इन. फर्स्ट जनरेशन जब आती है, जब वो अपनी जनरेशन बढ़ाती है, तो उनका ये होता है ना कि वो बस अपनी और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपनी सर्कल में रखें, वो बाहर के मुल्कों के लाइक जो कस्टम जनरेशन है उसके उनको यूज टू ना करें. वो टीचिंग्स भी बिल्कुल वैसी देते हैं, उनको बताते भी वैसे हैं, सारा जो पूरा प्रोसेस है सोशलाइजेशन का वो बेसिकली करते हैं अपने हिसाब से कि हमारा पाकिस्तानी वैल्यूज, हमारी पाकिस्तानी कल्चर इनमें एम्बेडेड रहे. और वो इतना हार्श हो जाता है कि बंदा फिर इतना, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट, कि वो बंदा इतना आई डू ओपन एक्चुअली। अपने आप को या कर नहीं वो सकता वो डर की पता है, वजह वो से ना भी, इधर का रहता है ना उधर का ना रहता है उधर वो। का रहता है, एंड आई अपनी एक्चुअली, आइडेंटिटी में ही मिक्स हो जाता है. हाँ, एक तो हम वैसे ही इतना एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी बॉन्ड नेशन है, और ऊपर से हमारे सेकंड जनरेशन डायस्पोरा की, आई एक्चुअली से आई सीन पीपल इन पाकिस्तान, हमारा सर्कल ऐसा है कि वो जी इंग्लैंड से वापस आ गए कि बच्चे हमारे पाकिस्तान में बड़े हों, कनाडा से वापस आ गए बच्चे हमारे पाकिस्तान में बड़े हों, ठीक है, ओके फाइन, इट्स योर चॉइस, देयर योर किड्स। अच्छा, एडमिशन उनका कराया उन्होंने कराची ग्रामर के अंदर, निक्सर के अंदर, लाइसियम के अंदर, या सारी दुनिया की उनको जो उनको ड्राइवर, गाड़ी, एवरीथिंग दे दिया। Do you या really think that guy cannot do something in Pakistan which he can in Europe? Like, हम कराची में पढ़े हुए हैं यार, मतलब हमें, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है कराची में जो मैं अपने प्रिविलेज के साथ नहीं कर सकता, जो मैं यहाँ पे या कर सकता हूँ। या एंड पेरेंट्स को, जब मैंने एक्चुअली डिबेट की कुछ पेरेंट्स के साथ, कुछ मेरे एरिया में कुछ लोग मूव हुए, मैं रनिंग करते हुए उनसे मिला, लाइक मेरे अम्मी अब्बू के दोस्त हैं, वो कहते हैं यार नहीं, एट द एंड ऑफ द डे होम इज होम, लेकिन पासपोर्ट हमारा ब्लू होगा, रहना हमने, मतलब वो एक एक अजीब सी कॉन्फ्लिक्टिंग उनके व्यूज होते हैं। एंड आई कांट रियली या ब्लेम देम, लेकिन पता है उससे हमारा क्राइसिस और बढ़ता जा रहा है, या हमें नहीं पता, क्योंकि आई जस्ट वन मोर थिंग देन यू कैन से समथिंग, मतलब यहाँ पे I was in a talk on Afghanistan the other day, and उस या पूरे रूम में there were like 6-7 brown people. I was the only Pakistani, others were Indians in Bangladesh. And like जब आप इंडिया बोलते हो ना यहाँ पे, इन द Groningen में या एम्स्टर्डम में, तो बॉलीवुड, शाहरुख खान, या दिल्ली, फूड, या शादियाँ, मतलब अंबानी, टाटास, ये सब आता है या दिमाग में। जब आप पाकिस्तान बोलते हो ना, कुछ लोगों को लगता है वो कोई छोटी सी मिडिल ईस्टर्न कंट्री है कहीं आगे पीछे सऊदी अरेबिया के, या कुछ लोगों को लगता है कि बस वो अफगानिस्तान के राइट पर है, पता नहीं उधर या होता कि हमें नहीं पता, और बस दैट्स इट, that's या really that's really it for Europeans. Like Englishmen, उनको फिर पता होता है इंग्लैंड को, because of या cricket and because of our vast history या and colonialism and extra. This really like sickens me, like this, मतलब we are no different than India, मतलब हम क्या, मतलब मुझे तो कोई as such इतना डिफरेंस नहीं नजर आता। या ये बात बिल्कुल ठीक बोले. आई रिमेम्बर जब मेरे फर्स्ट फ्यू डेज थे हंगरी में, सो दिस हंगेरियन गाय ही आस्क्ड मी वेयर एम आई फ्रॉम, मैं बता पाकिस्तान, एंड उसने लिटरली किया भू भू लाइक बॉम्ब्स, एंड आई वाज जस्ट लाइक के what are you talking about, and then he asked me how are you allowed to come here, where is your burqa, and how did you come here, and I was like that I don't think that you're making sense, but I'm just Yeah, proving your point wrong by me being here, that women are allowed to opt for education. Yes, I agree कि पाकिस्तान में बहुत बहुत ऐसे सोसाइटीज है, कम्युनिटीज हैं, या एरियाज हैं, या रूरल एरियाज हैं जहाँ पे औरतों को नहीं है इतनी इजाजत, औरतों को नहीं मिलती इतनी फ्रीडम. आई थिंक
I should be super thankful that I grew up in a family जहाँ पे है हमें इतनी freedom, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग सारा बुर्के में बंद होते हैं और औरतों को घर से That's निकलने की इजाजत नहीं है. Let's not that's really, generalize the yeah, whole the whole population. society. They're like Yeah, 220 people. And something about burqa, मैं बस एक reflect कर रहा हूँ. yeah, चलो ठीक है, I'm just मेरा base scale, मेरा अपना circle है कराची के अंदर. From yeah, what I think, because I've been to Malaysia thrice and I've been to yeah, Turkey as well. yeah. From what I think, generally हमारा कराची में रहना, लाहौर में रहना, I've actually seen more women from East Asia, Indonesia, Malaysia, here in Groningen and in Amsterdam and Rotterdam, जो के proper scarf and hijab करती हैं. Then करते हैं, yeah, I'm not commenting on someone's clothing choice, just to be. yeah, But yeah, of course, I पाकिस्तान में इतना understand. कॉमन नहीं है. पाकिस्तान में even in our families दुपट्टा चलो Yeah, is very common, but ये हिजाब yeah, ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा है. yeah, इंडोनेशिया में, अफ्रीका के रीजन्स में, yeah, दार es salaam में, उन एरियाज में बहुत ज्यादा. I've seen yeah, African women here. पाकिस्तान में तो ये है ही नहीं. मतलब ठीक है हमारे नॉर्थ वेस्ट में है, बट yeah, लोगों का परसेप्शन वो साउथ तक आते ही नहीं है. बस वो कहीं वो पहाड़ों में ही रहते हैं कि पता नहीं yeah. अजीब घोड़े चलाते हैं हम लोग, और पता नहीं खाना केव्स में खाते हैं, और पता नहीं मतलब लाइक. Yeah, But yeah, yeah, that's something I see, observed. exactly this reason why I'm into this field to again कि एक तो हमारे जो ये irregular migrants आते हैं सारे, इनकी वजह से हमारा पासपोर्ट भी इतना 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 गंदा हुआ है, स्पेशली इन द बाल्कन रीजन्स. जितना मैं लाइनों में खड़ी हुई हूँ ना बाल्कन रीजन्स में, 2-2 घंटे, एक एक I घंटा haven't निकाल traveled दिए. yet, but मुझे जाना है. मैं करूँगा travel देखो like. मेरे लिए it was very difficult. I don't know how difficult it's going to be for you as a man, as a single man traveling, Yeah, but that's I true. am not at all discouraging you. Do it. Get those stamps. अपने passport पे वो stamps लगाओ, because that is the feeling. अच्छा, can you actually go? मतलब मैंने तो सुना था कि border control नहीं है, तो अगर मैं जैसे जाता No, हूँ you can towards go. You east, can go. so For instance, if you're going to a Balkan region, let's say Bulgaria, it's not in the Schengen zone, but it is in the EU. And since you have your residence permit from yeah, the Netherlands, right? So yeah. you can travel on that. But जो Schengen area में नहीं है, उसका बस आपका stamp लगेगा अच्छा, passport पे. stamp लगेगा. And आप सिर्फ Moldova, Ukraine, Belarus, Russia नहीं जा Can we go to सकते. Croatia though? क्योंकि मुझे Yes, you एक can go to Croatia as well. Croatia तो हमारे क्योंकि हंगरी के साथ होता था तो बहुत मजा आता था जाने में तो सारा. मैंने वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाला सीन करना है. मुझे हर उस जगह पे I जाने का would बहुत. highly recommend to go and see Zagreb Christmas market. It's my Yeah, favorite Christmas market. बहुत प्यारी Christmas I market है. really want to do So that, but like अभी खैर 2.5 साल हैं. I have a lot of time to मैंने तो do पहले that. 2 सालों में सारा सब कुछ सारा देख देख, लिया. you अब told मैं me थक about गई this. हूँ. अब मैं थक गई Yeah, हूँ. अब I just want to rest. I don't want to travel at all. And the thing with my masters is that every semester is in a different country, right? So so मुझे अब उसमें भी you're तंगी obviously, आती है कि अब मुझे yeah. अब मूव करना है, अब मूव करना है, क्योंकि अब मैं ब्रेक ले रही हूँ. यार वीकेंड पे, अच्छा मैंने छुट्टियां तो नहीं हुई, वीकेंड पे ट्रैवल किया, थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाता है. सो माय फर्स्ट ट्रैवल, एंड आई जस्ट वांट टू शेयर माय होल एक्सपीरियंस. आई टुक अ Yeah, of फ्लेक्स course. बस फ्रॉम ग्रोनिंगन टू Uh, बर्लिन. that was रात my डेढ़ first experience too. रात 1:30 बजे की Six. बस थी. रात 1:30 बजे की बस Yeah, थी. ग्रोनिंगन बिल्कुल बॉर्डर पर है, तो 3 बजे मैं मैप, yeah. मैंने मेरी आंख लगे में खोला, तो मैं 3 बजे देखा मैं ब्रेमेन आ गया था. मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, एंड रात में बस में बैठे हुए बॉर्डर क्रॉस कर लिया. और मैंने सिर्फ अपने आप को एक्सट्रैपुलेट किया अपने आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कि यार इस तरह भी बॉर्डर क्रॉस हो सकता है. लाइक ठीक है वो छोटी सी Exactly. बात है, बट फॉर मी इट Yeah, वाज अ वेरी एक्सिलरेटिंग फीलिंग कि बस में बैठा हुआ हूँ विद रैंडम 27 अदर पीपल. रात हो रही है, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, ड्राइवर को इंग्लिश नहीं आती, और मैं बिल्कुल ऐसे बॉर्डर क्रॉस करके बर्लिन चला गया. सैटरडे सारा दिन स्पेंड करके संडे को बस लेके वापस आ गया और डायरेक्ट yeah. क्लास में चला गया. तो लाइक दैट इटसेल्फ इज अ वेरी, क्योंकि पता है इवन इफ यू टॉक अबाउट नॉर्थ अमेरिका, मतलब यूएस कनाडा बॉर्डर पे भी मतलब देखते आपको हैं रोकता आपको, है. आप कौन Yeah, हो, कहाँ से आए हो, इवन इफ यू आर अ yeah, वाइट डूड चेक yeah. करेंगे भाई आप. लेकिन यहाँ पे, एंड दैट्स, आई थिंक Y- दैट्स अबाउट इट, लाइक अबाउट यूरोप मतलब. यही तो सारा concept of the European Union. That the Yeah, European Union, आपके जो article 3 to 1, I don't remember, TEFU वाला जो article है about freedom of movement, freedom of rights of yeah, people within the European Union, यही तो सारा इसका point है that people have the right to move freely. People have the right to move freely for education, move freely for work, move freely for whatever reason that they want. But the European Union citizens, हमारे yeah. थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए बहुत इधर बहुत बहुत मसला है ज्यादा यार. Like बहुत these guys मसला है, यार, बहुत रुलना पड़ता इनकी है.
इनकी फीस इनका लाइक अगर लिटरली मेरे पास चांस हो ना, आई एम स्ट्रिक्टली, मुझे एक और मास्टर्स करने का भी, लाइडन में एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम होता है अबाउट क्राइसिस एंड गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, और मैं सोच रहा था, बट अगेन अगर मुझे 1,000 यूरो देने पड़े, आई डोंट हैव एनी अदर प्रॉब्लम डूइंग अनदर मास्टर्स मे बी बिकॉज आई एम Yeah, इंटरेस्टेड, बट मुझे 1,000 नहीं, शायद 14-15 हज़ार देने पड़ेंगे, हालांकि yeah. देयर इज ए सेकंड डच मास्टर्स कॉन्सेप्ट जिसमें शायद मुझे थोड़ी कंसेशन मिल जाए, Mm. but the whole idea, and pata hai, when you talk to people from Eastern Europe na, like from Poland, from Slovakia, from Prague, Yeah. from all these areas, वो ना अपनी अपनी मुल्कों की बुराइयां कर रहे होते हैं कि वो xenophobia बढ़ा है, homophobia बढ़ा है, और ये देखो हम नेदरलैंड्स बहुत अच्छा है. Even I've talked to people from there's an area Catalonia in Spain, I guess. Catalonia, yeah. Yeah, Catalonia, and that guy was like, I never want to go back to Spain, I want to live here. मैं उसको बता रहा था, भाई ये आप रिलेटिव स्टैंडर्ड्स में बात कर रहे हो, क्योंकि फॉर अस आपका मुल्क बहुत बेहतर है हमारे जैसे लोगों Yeah. के लिए, एंड ईस्टर्न यूरोप वाले अपनी बुराइयां कर रहे होते हैं, एंड देन यू जस्ट हैव अ व्यू के यार इट्स ऑल रिलेटिव, राइट? मतलब नॉर्डिक वाले बहुत अच्छे हैं, नीचे सोफिया में आगे पीछे बहुत मसले हो रहे होंगे लोगों को, और लाइक समवन फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप टेलिंग मी कि यार हमारे यहाँ लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, वो बड़ा वो रिलीजन के खिलाफ समझते हैं, एंड फॉर Yeah. मी इट वाज लाइक यार ये तो पाकिस्तान में होता है, मतलब ये आप लोगों के यहाँ ये मसले क्यों है, मतलब ये तो हमारे यहाँ होते Yeah. हैं. एंड हियरिंग थिंग्स लाइक फिनलैंड के अंदर यू हैव टू डू अ मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस, मतलब आई डिडंट नो दैट बिफोर It's कमिंग. actually in a lot of countries. Norway Those में भी countries है. that border Russia, like are close to Russia, उनको I think ये, I'm I not don't sure if know it's a कि compulsion, but I don't know कि रशिया वाला है कि नहीं, but like ये government to government depend करता है ना. For instance, in Norway as well, you जब आप I think 16 years के होते हो, so you have to serve for 2 years in the military. and But yeah, people have their ways to get out of it. मतलब they So deposit some money, or they take 2-3 months, then come to their masters, because a lot of people here did their bachelors, served, and then yeah, came for their masters, and or they just fake a drug test that, oh, we've been doing yeah, drugs, so we yeah, can't serve yeah. in the military. So it's in a lot of countries. इधर काफी countries में ये concept है. यार Sweden में भी है. एंड पता है अगर आप पाकिस्तान में इस तरह का कॉन्सेप्ट रखो, आई एम नॉट लाइक इनकरेजिंग इट, बट जो 17-18 ईयर ओल्ड हमारे यहाँ हैं, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और उनको 1 साल की डिसिप्लिन मिलिट्री सर्विस मिल जाए, मतलब चाय के ढाबे पे बैठने से बेहतर है. मतलब 16-17 ईयर ओल्ड पाकिस्तान में एक पूरी लॉबी शुरू हो जाएगी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑल दैट, बट लाइक it's no, I even met someone from Iran. उसने कहा भाई मैं पैसे जमा कर आकर आया हूँ ईरान में, ताकि वो मेरी गारंटी है कि मैं वापस आके सर्व करूंगा अपनी मिलिट्री में. And Iran is just like right down the corner. Next time, yeah. So I mean, I don't know how this concept will work in Pakistan, to be honest. हमारी youth majority, I don't really trust our yeah, youth majority of it. I don't either. But जब पता चलता है कि कुछ unfortunately majority of them have nothing to do, and I'm very, I'm not saying कि हर कोई बिल्कुल भूखा मर रहा है. Alhamdulillah, that's not the case in Pakistan. Yeah. But Yeah. I personally think that a substantial segment of our population is actually doing nothing apart from their studies and वो जो routine काम होते हैं, and not even the military service, community service and something like that, कुछ भी हो सकता है. But I really want to debunk their perceptions. मतलब ट्रैवल Yeah. करें, लोगों से मिलें, यू मीट पीपल फ्रॉम टर्की, मतलब, एंड देन वी हैव दिस होल, वो एक हमारे यहाँ एक उर्तुगुल वाला परसेप्शन है पाकिस्तान में कि पता नहीं टर्किश तो पता नहीं सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, एंड यू Yeah. मीट पीपल फ्रॉम टर्की, दे पार्टी, दे ड्रिंक, दे डू एवरीथिंग दे वांट टू डू, लाइक नो वन स्टॉपिंग देम फ्रॉम डूइंग ऑल दैट Yeah. स्टफ. The thing is that, see, हमारे जो society है उसमें awareness इतनी नहीं है. Like I would be so happy to see our youth doing so much better. Like for instance, just take advantage of these opportunities, these scholarship opportunities. ये हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि प्रोवाइड नहीं कर रही. फॉर इंस्टेंस मैं हमेशा इस बात पे, अभी की गवर्नमेंट हो, पिछली गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट हो, इस बात पे मैं बैकअप करूंगी कि अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन कभी कभार हमारी जो सोसाइटी है या हमारे जो लोग हैं वो उन अपॉर्चुनिटीज का भी उल्टा फायदा निकालते हैं. यार पीएचडी करने आते हैं और पीएचडी छोड़कर जॉब्स करके अप्लाई कर देते हैं फॉर पासपोर्ट एंड पीआर, और इस तरह के इतने मसले होते हैं. एंड मतलब दिस मतलब गवर्नमेंट करे भी तो यार, मतलब फिर हमारे लोग भी तो उसको रिस्पेक्ट नहीं करते ना. दैट ब्रिंग्स मी ऑन टू योर एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान एम्बेसी, सोफिया, बुल्गारिया, आई गेस. how is it like, I if you can interned talk in about, if you can talk about like I generally don't want to get overview. in Oh, I don't okay, want to get in trouble. that's fine, But that's fine. I was supposed to intern there for a month and I left in 2 weeks. Let's just say that. Oh, But okay.
after working in an embassy, and I've generally seen a lot of Pakistani embassy environments within Europe as well. मेरे कुछ embassies के साथ बहुत अच्छा experience था, कुछ embassies के I साथ heard experience about your बहुत बुरा lost था. passport story जो आपने travel Yeah, diary पे oh, post किया था, मैं and that was, yeah, मैं I can't मैं even अभी imagine तक अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए, मैं पता नहीं क्या Yeah, करूँगा. to be honest, for some reason, I still just जिन लोगों को नहीं पता, just an quick overview. So I was basically traveling from Poland to Hungary. मैं हंगरी जा रही थी अपना left luggage जो मैंने bachelor's में छोड़ा था वो basically सारा pick up करने and to meet my friends, thinking it's going to be a really nice experience. I was missing Hungary बहुत ज़्यादा, so I was like, let's just go because I had a blast in Hungary. I'll be very honest, a life-changing experience in Hungary. तो in Vienna हमारा stay था around for 8 to 10 hours. I don't remember exactly कितना लंबा था. So we stayed at a friend's place, barely any sleep. So we were going to catch our train to Hungary from Vienna, where I left my luggage, not my luggage, my bag in a train, regional train थी Vienna में. Because I was so sleepy, मेरा bag, that luggage जो मेरे इसमें था, it costed कह रही हूँ, it weighed around 8 to 9 kgs. उसके अंदर मेरा लैपटॉप सब कुछ, और मैं कभी भी I never keep my passport and my wallet in my bag. हमेशा मेरी जैकेट के अंदर जो हिडन जेब होती है उसमें पड़ा होता है, Okay. हमेशा उसमें होता है. एंड उस दिन खैर जाली थी चीज तो चली गई, एंड मेरा पासपोर्ट, मेरा लैपटॉप, मेरा literally everything, every possession of I mine, my can't, ID cards, मेरा I can't residence imagine. permit, That's, or everything. I residence just had permit my तो phone. होता भी इतना, like it's so fucking important, like it's your ID, like sort I of. just had my phone, and जो मेरा 6 घंटे का ट्रिप था वियना में, that turned into a 2 weeks trip. एंड इसी आश्रय या होप में बैठी हुई थी कि शायद मिल जाए, बिकॉज लोग कह रहे थे कि वियना में आपको आपका पासपोर्ट और चीजें मिल जाती हैं. आई डेंट केयर अबाउट द लैपटॉप, जाए पैसे चले जाए जो चीजें, बस मेरा पासपोर्ट और मेरा आईडी कार्ड मिल जाए. एंड यू And नो द सैड थिंग इज दैट मेरा पासपोर्ट, अगेन आई एम नॉट ब्रैगिंग, it was, I felt like I still feel like my passport is something very close to me in terms of my identity, because either in Europe our passport is seen something as कोई बहुत low चीज, and that it's true. was like, you know, कि मेरा पासपोर्ट पे सिर्फ एक पेज रह गया था, पीछे पूरा full of stamps and visas था, और मैं ये पासपोर्ट That's सेव करना चाहती थी to, you know, like show border police when I go to Balkans next time, to show somewhere that okay, you know what, our passport is not worthless. It does mean something, and that's then especially to that's me it meant a that's lot. that's And actually true. Yeah, that's क्योंकि like जब yeah, you can man. जब मेरी सारी चीजें चली गई थी, I for some reason I was very calm. I didn't cry. परेशानी of course हुई थी, but within a day I was like, चली गई, okay, चली गई, let's think about the next step. Let's think about अब आगे क्या करना है. तो वो भी काफी रिस्की चीजें हैं जो मैंने की थी उस वक्त, जो एक मैंने जर्नी की थी from Vienna to Poland without any documentation, which Oh, was okay. very 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 risky. अगर पुलिस आ जाती, Because even though technically they don't check, but कर सकते हैं मतलब या अग्नि कभी कभार चेकिंग हो जाती है ना हो बिकॉज ऑफ जाती है. कोविड. एंड बट मैं आई वाज श्योर कि अगर हो गया तो आई न्यू माय राइट्स, मुझे पता था मेरे क्या राइट्स हैं, मुझे पता है मैंने कैसे अपने आप को डॉक्यूमेंट लाइक वो एक्सप्लेन करना था, कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने थे वर्बली. जेल में डाल देते, सीधा जेल में डाल देते क्योंकि ये इनका प्रोटोकॉल है. तो जेल में मैंने किस तरह बात करनी थी, कैसे लॉयर को कांटेक्ट करना था, कैसे ये सब कुछ, ये सारी चीजें मैं पहले से अपने आप को Yeah. करके गई थी. एंड मैंने पाकिस्तानी एम्बेसी से भी लेटर इशू कर लिया था, मैंने वियना की पुलिस से भी कंफर्म कर लिया था. उन्होंने जब मुझे ग्रीन सिग्नल दिया कि हमारी तरफ से कोई इशू नहीं, लेकिन अगर चेक बॉर्डर या पुलिस बॉर्डर ने कुछ किया तो हम कुछ नहीं कर सकते. बट मैंने फिर भी कर लिया, बिकॉज आई वाज लाइक कि आगे भी तो बढ़ना है ना, अब आगे भी तो अपना पासपोर्ट Yeah. मैंने अप्लाई करना है. वो भी बहुत स्ट्रेसफुल, वो एरिया पीरियड ज्यादा स्ट्रेसफुल था अप्लाइंग फॉर अ पासपोर्ट. एंड द थिंग इज मैं इतनी स्टूपिड हूं, मेरा सीएनआईसी भी पड़ा हुआ था मेरे वॉलेट में. मेरा सीएनआईसी कभी नहीं होता. उस टाइम पे मैंने रख लिया कि हंगरी में कोई अगर और बैंक yeah, अकाउंट बंद कराना या कुछ करना हो तो उसमें तो काम आता है ना. एंड इधर है दैट विदाउट अ सीएनआईसी यू कैन नॉट अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट. passport. तो वो भी काफी और फिर सीएनआईसी के लिए पाकिस्तान जाना, मतलब सीएनआईसी लाइक कैसे बनी? सीएनआईसी, अच्छा, फिर फिर वो अलग से नाइकॉप, अप्लाई होगा, फिर नाइकॉप. नाइकॉप बना था, फिर नाइकॉप के बाद पासपोर्ट अप्लाई हुआ था. बहुत ज्यादा वो. That's एंड द थिंग इज मैंने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट रिसीव किया था ना वॉर्सो की एम्बेसी इन वॉर्सो, वो एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान वॉर्सो में. तब मैं एम्बेसी के बाहर बैठ के बहुत रोई थी क्योंकि मेरे घर से मेरा that's खाली पासपोर्ट है. तब मुझे yeah, सही हिट हुआ था कि that's so true क्योंकि पता है
it was my 7th or 8th day over here, और मेरी neighbor she knocked on my door and she's like, there's probably a gas leak, you need to get out. और मेरे लिए मतलब पाकिस्तान में तो आग क्या कुछ भी हो जाए हम अजीब काम करते रहते हैं अपना, तो मैंने कहा ओके. एंड एट दैट वेरी मोमेंट इट वाज अ वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट. मैंने अपना पासपोर्ट उठाया है, वॉलेट, फोन, हेड सब छोड़ के मैं भाग गया बाहर. Yeah. फायर ब्रिगेड आई, पुलिस आई, उन्होंने पूरा 1 घंटा इंस्पेक्ट करा, उनको कोई गैस लीकेज मिली. खैर, लेकिन मेरे पास सिर्फ Yeah. मेरा पासपोर्ट था और मैं अपनी बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ था. मैंने कहा यार मतलब that was a natural instinct for me. मुझे पता था कि यार पासपोर्ट इज actually very important, and Important. Yeah. it's your, you agree with it or not, it's your I do. identity for the foreseeable future. मतलब ठीक है आपको एक और पासपोर्ट मिल भी जाए, but you'll remain what you are. मतलब आप अपनी roots तो Yeah. change नहीं कर सकते ना. And That's exactly why I wanted that passport to be a reminder for me, and also for people that I meet, that see, with the Pakistani passport you are able to do you a lot. can आप you कर can सकते हो. and that's so nice. I just want to talk about my grandfather and dada. उन्होंने almost कोई मतलब ठीक है बिफोर 9/11 उन्होंने बहुत ट्रैवल करा है, बट वो मुझे बताते हैं कि ही हैड एन अपॉर्चुनिटी इन द 70s व्हेन ही वाज स्कॉटलैंड, क्योंकि उस जमाने में हमारा इंग्लैंड के साथ ड्यूल नेशनल Yeah. नहीं था. तो अगर उनको वहाँ रहना था तो उनको अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर करना था, जो कि आई थिंक नेदरलैंड्स में भी करना पड़ता है, बट उस वक्त यूके में भी करना होता था. उन्होंने नहीं किया, वो पाकिस्तान आ गए, वो 15 साल वहाँ पे रहे, और उसके बाद उन्होंने ऑलमोस्ट कोई आई थिंक 80+ कंट्रीज तो विजिट कर चुके हैं Yeah. थ्रू हिज मेडिकल प्रोफेशन ऑब्वियसली. और Yeah. वो मुझे बताते हैं मैंने सारी जिंदगी पाकिस्तान पासपोर्ट पर ट्रैवल किया. ठीक है 9/11 के बाद मसले थे, बट आज Yeah. भी मतलब मेरा वैलिड शेंजन वीजा है, मेरा वैलिड यूएस वीजा, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ. मतलब ठीक है Yeah. मसले होते हैं, Yeah. बट मतलब मैं और आप भी, लाइक मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यू आर इन सोफिया राइट नाउ, यू हैव बीन थ्रू ऑल ओवर यूरोप. पासपोर्ट तो हमारा वही था ना, मतलब ठीक है Yeah. Exactly. third or fourth worst in the world, but we somehow did it. Like we are here, like Exactly. it is what it is. So एंड सबसे ज्यादा मजा मुझे तब आता था, स्पेशली जब बालकान्स में आती थी, या कोई इस तरह की रीजन में जो बहुत एंटी पाकिस्तान हो, व्हेन दे यूज्ड टू गो थ्रू माय पासपोर्ट, एंड तब उनकी शक्ल में देखने में मुझे बहुत मजा आता था. कि वो जो शक्ल बनाते थे ना, पहले तो होता था yeah. शुरू में, क्योंकि मैं सोफिया पर ट्रैवल करती थी ना, तो शुरू में क्या होता था कि पहले निकाल लेते थे लाइन से क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे, क्यों आई हो, क्या करने आई हो, किस लिए आई हो, बाकी डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ. उसके बाद ऐसा हो गया कि जस्ट स्टैम्प एंड गो, हैव अ नाइस डे, जस्ट स्टैम्प एंड गो, Yeah, हैव अ नाइस that's डे. मतलब एंड पता है हमारे यहाँ ना असल में इन लोगों की गलती ना भी हो ना, हमें इतना ट्रॉमा और हमें उस तरह बड़ा किया है कि आप लोग तो बिल्कुल, क्योंकि लाइक मैं जब शिपोल लैंड किया, स्किपोल इन या एम्स्टर्डम, एयरपोर्ट. पहला दिन था मेरा. एंड मेरे पासपोर्ट में ना, मेरा जो अभी करंट पासपोर्ट है ना, जिसपे मेरा वीजा एंड एवरीथिंग है, उस पे लाइक 3 आई थिंक टर्किश वीजाज हैं और ये मेरा शेंजन वीजा है. एंड उस पे ना अब मेरी दाढ़ी है पिक्चर के अंदर, इतनी ज्यादा दाढ़ी नहीं है, बट जैसे मैं रखता था लाइक थोड़ी सी ज्यादा. या एंड अब स्किपोल पे लाइक आई एम इन द लाइन, आई हैव लाइक अदर पीपल, एंड वो बंदे ने मेरा यूं पासपोर्ट देखा. माय फर्स्ट डे, आई हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर द लास्ट 27 आवर्स. उस देखता रहा. थोड़ी देर बाद उसने रखा, उसने अपने एक कॉलीग को बुलाया. अब वो ना, अब मैं क्लीन शेव था, अब वो बेसिकली एसर्टेन करना चाह रहे थे भाई ये कौन है, इसकी दाढ़ी क्यों नहीं है. एंड फाइनली दे लेट मी गो, दे वर वेरी नाइस, दे वर या वेरी आस्क्ड मी अबाउट थिंग्स. एंड क्योंकि मेरे पास मेरा रेजिडेंस परमिट नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल था, रेजिडेंस परमिट होता तो कुछ भी नहीं या कहते, वो तो बस पाकिस्तान एयरपोर्ट पे भी लाइक परमिट दिखाओ एंड यू आर गुड टू गो, कोई पासपोर्ट भी नहीं या देखते आपका. तो या दैट्स इट. और आई थिंक मे बी इन द फ्यूचर लाइक मे बी थिंग्स विल चेंज, मे बी लाइक हमारा परसेप्शन शायद थोड़ा सा बेहतर हो जाए, एंड इट विल टेक टाइम, बट this people like you reminded me can do yeah this. this reminded me of two incidents. So Okay. pehla was in Bulgaria. मैं बस से ट्रैवल कर रही थी, सोफिया से वापस बुदापेस्ट जा रही थी, बस से, फ्लिक्स बस से ट्रैवल कर रही थी. तो बल्गेरियन बॉर्डर पे उन्होंने मुझे रोक लिया, और उन्होंने मुझे 45 मिनट्स रोक के रखा था. और 3-4 ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने मेरा मेरा स्टूडेंट आईडी भी देखा, मेरा परमिट भी देखा, मेरा पासपोर्ट भी देखा. एंड में मुझे बंदे ने बोला कि आपको इसलिए रोका है क्योंकि एक पिक्चर में आपका कान छोटा है, दूसरी पिक्चर में आपका कान बड़ा है. उस वक्त जो मेरा दिमाग घूमा था ना What the कि 45 मिनट्स आपने मुझे इसलिए रखा है. Of course you can't even really argue with these people, like me being a single yeah. female there, I don't want any problems for me, so you know, उस वो बहुत पहले का और टाइम है उनको जब मेरा अंग्रेजी पासपोर्ट. भी नहीं आती यार, अक्सर को तो या इंग्लिश में या ही या मसले होते नहीं 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 आती. वो कोई एक बंदा होता है जो टूटी फूटी बोल लेता है. सेकेंड हैं. इंसिडेंट जो मुझे याद आया, अभी रिसेंटली जर्मनी में था मैं, मुझे याद नहीं आ रहा मैं कहाँ जा रही थी, अभी कुछ महीने पहले था, मेरा पासपोर्ट चोरी होने से कुछ महीने पहले.
बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा मैं कहाँ आई थी, लेकिन मैं फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पे थी। वहां पे मुझे एक बंदा, एक ऑफिसर जो इमिग्रेशन वाला ऑफिसर था, उसने मेरा पासपोर्ट खोला, उसने मेरा पूरा पासपोर्ट चेक किया, उसने मुझे बोला अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारा पासपोर्ट 1 सेकंड में कैंसिल कर सकता हूँ। मैं डर गई कि इसको ये क्या हो गया। एंड कहता है कि लेडी यू नो दैट योर पासपोर्ट इज नॉट साइंड बाय यू, कि मैं अपना पासपोर्ट ओह नहीं, मैंने साइन तो किया हुआ है। तो मैं वो हंसने शुरू हो गया। तो उसने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू स्टडी, तो मैंने उसको बताया कि मैं ये माइग्रेशन वगैरह पढ़ रही हूँ इस तरह। तो कहते ओह यू आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड यू आर स्टडीing illegal migration, and I was like yes sir, so I'm studying आयरनी this, so डाइट। yes I can study this so that you don't have to say that in the future that you are from Pakistan and you're studying illegal migration. And फिर वो कहता है you know what, Pakistani people are very nice but of course some of them are not nice, like गंदी सी शक्ल बना के like food। तो कहता है कि but I don't want to generalize bad Pakistanis onto all Pakistanis. You are good That's Pakistani, you that's keep so up your work and you keep on doing what you're doing. एंड फिर कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर आना हो ना फ्रैंकफर्ट, तो इसी पे आना, मैं इतने इतने बजे इधर बैठना, सो आई वुड लव टू स्टैम्प योर पासपोर्ट अगेन। that's so तो cool, ना right? Like that's fun, like एग्जैक्टली पता है कि ये मैं एक बताया ना कि एक होता है कि आपकी आइडेंटिटी भी कभी कभार बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट छोड़ जाती है लोगों के। अब उस बंदे को तो याद रहेगा ना कि एक पाकिस्तानी लड़की आई थी, इलीगल माइग्रेशन पढ़ रही थी, शी वांटेड टू कॉम्बैट इलीगल माइग्रेशन, आई कांट डू दैट ऑन माय ओन ऑफ कोर्स। इट्स जस्ट अ बिग 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 ड्रीम दैट आई सी दैट एक दिन कोई पॉलिसी में लेके आऊंगी कि इलीगल माइग्रेशन या इरेगुलर माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान खत्म हो जाए। लेकिन मुझे भी पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है विद मी ओनली डूइंग दैट। बट again, I'm still very adamant on pursuing my dream, following my dream of doing something at least, चाहे एक स्टडी लिख दूं चाहे एक रिसर्च लिख दूं, but doing something at least जिससे yeah. लोगों को Yeah, अवेयरनेस तो आए। even if you change one perception, like अभी तक मेरे यहाँ पे हर कोई तो इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, but like I do find like-minded people, और मेरी उनसे debates होती हैं, like some of them are from Europe, some of them from the US, UK, and हम लोग colonialism पे बात करते हैं। हम लोग like रात में बैठ के late night हम लोग ये पूरा एक white man's burden के ऊपर बात करते हैं, और how they messed up like earlier like hundreds of years ago, और बड़ा मजा आता है उनसे बात करके। और like I just, so in the Netherlands we have this thing called DigiD बोलते हैं उसको, that's your digital government ID, that's like या tax, पानी, सीवेज, जो है मसले आपके सारे उस पर होते या हैं। या And या you have that BSN number as well, I'm sure वहाँ पे भी होता होगा, या SSN होता या होगा, कुछ इस तरह होता होगा। So I just in the class, like our lecturer is from Brazil, एंड हम बात कर रहे थे डिजिटल गवर्नमेंट्स के ऊपर। मैंने उसको बोला देखो पाकिस्तान में वी हैव दिस पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, जहाँ पे सिटीजन रजिस्टर करते हैं और अपनी कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। एंड ही वाज शॉक्ड, उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान में भी कोई इस तरह की ऐप हो सकती है, कोई स्मार्टफोन होता है कुछ। एंड ही वाज लिटरली शॉक्ड, लाइक मतलब मुझे नहीं कभी लगता था कि पाकिस्तान में भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। सो आवर वेरी ओन एग्जिस्टेंस इज बेसिकली डीबंकिंग द मिथ, लाइक या that's that, yeah. this actually not reminds me, but मेरे दिमाग में एक बंदा है इस वक्त, and I know that you and him will be amazing together debating on stuff or talking Okay. about stuff. He's basically my colleague from Hungary, and he's also doing an Erasmus Mundus right now, and Okay. Abhi global studies man. Abhi he is in Leipzig in Germany. His name is Nasrullah, Okay. and I see so many similarities between you Yeah. and him. Okay, if you bring him on this platform, I know it's going to I be will just let me know, amazing. like let me connect, and अभी मैंने शुरू करा है, but I really want to do this for the time like I'm here at least, क्योंकि I really want to like मेरा आगे academic interest भी इसी तरफ है। I really want to do Yeah, something around these themes, and it's always so fun to talk to people. The best debates I've ever had is with Indian people, यार, मतलब like, and like I was in Berlin and I was staying at a place जहाँ पे कुछ Indians भी रह रहे थे, और उनसे मेरी बात हुई, और मतलब हमने जब रैंट शुरू करी ना, तो ऐसा कोई मसला नहीं था जो उनके यहाँ और हमारे यहाँ नहीं है, और हमारे यहाँ और उनके यहाँ नहीं है। इट वाज सो फन टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, yeah, मतलब लाइक जो हम बॉलीवुड और नॉवेल्स में देखते हैं, एंड देन यू एक्चुअली yeah, टॉक टू अ रियल पर्सन, एंड देन यू हैव दिस वियर्ड फीलिंग, क्योंकि लाइक आई हैव लाइक मेरे दो ड्रीम्स हैं, मतलब मुझे इंडिया विजिट करना है और मुझे यरूशलेम इजराइल विजिट करना है, जो कि मैं नहीं कर yeah. सकता और माय ओन पासपोर्ट। तो मेरे ये मैंने करना है, ये ठीक है ट्रैवल कर लूंगा India फिर। you can visit. India India you I can can, visit. but like it's so hard, right? Like The thing is that my parents have been visiting India since the last 3 years. they might Last have family होगी last ना उनकी। तीन नहीं last 3 साल से नहीं विजिट किया, बट आई थिंक कोई था 10 years का भी था जब वो हर साल जा रहे थे पीपल्स every पार्टी year. गवर्नमेंट और मुशर्रफ एरा में बहुत आसान था
तो और अगर आप हिंदू वो और जाते थे बिजनेस वीजा पे, बिकॉज माय डैड्स अ ओके डॉक्टर, तो ही वाज ओके बेसिकली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो मेडिसिन होता है, होम्योपैथिक अच्छा मेडिसिन, वो इंडिया से कर रहे थे। तो वो अच्छा जाते थे, अच्छा 1 महीना रुक कर आते थे, अपना घूमते थे फिरते थे, शॉपिंग करके आते थे। माय डैड लव्ड इंडिया सो मच, एंड इतना या ज्यादा कि इट्स लाइक हर साल उन लोगों ने जाने का बना दिया था। एंड आई रियली वांना आई विल इंशाल्लाह होपफुली इफ आई गेट इन टच विद समवन मैं पार्टीशन पे भी कुछ इंडियंस अगर आना चाहें लाइक मेरे चैनल पे मुझसे बात करना चाहें मैं एक्चुअली I've actually lined up another there's this Afghan student in my one of my classes ओके her parents migrated in 2000 to Groningen she's Dutch ओके Afghan और अभी उससे में भी मेरी बात चल रही है and probably I'll be doing this with her next week and I'm या really looking forward to that as well and उसके अलावा भी like यार मतलब कॉन्वर्जेशन जरूरी है मतलब हम इतने या अपने एको चैम्बर्स और साइलोज में रहते हैं मतलब इवन पाकिस्तान में मेरी दोस्तों से बात होती है यार उनके सामने नेदरलैंड्स बोलो ना बस उनका वो वीट कॉफी शॉप्स आ जाएंगी दिमाग में और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और पार्टी है और बस लोग लोग ना ऐसे आप सड़क पे निकलो लोग पड़े हुए हैं बस कोई कोई जिंदगी में किसी का मतलब लाइक ये परसेप्शंस गलत या है या you have to correct them and आई रिमेम्बर जब मैं एम्स्टर्डम आई थी, मैंने लिटरली बर्गर खाया था, और मैं असद के साथ आई थी, इफ यू नो असद। हम लोग I'm living in his निक्स apartment this is Asad's place रियली Asad Naki right yeah, I still owe him €7. I will always remember that. He He refuses was to take it here. now. He was here 2 days ago. We met. He's in. He's moved from here, and Okay. I'm really grateful to him क्योंकि like Groningen में जगह मिलना बहुत मुश्किल था. मुश्किल था यार। And उसने मुझे खुद बोला कि you can take over my apartment and I did. He referred me to his landlord and it's a very nice apartment. Like I remember कि मैंने शुरू में बोला था कि I'll come to my next semester का, अभी जो बहुत बड़ा मसला चल रहा है यही कि अभी so my next semester, my third semester of my masters is in Ireland, right? And okay, वहाँ पे accommodation कहीं नहीं मिल रही, कोई यार अकोमोडेशन देने के लिए तैयार ही नहीं है। एंड द थिंग इज, मैं एक Erasmus स्टूडेंट हूँ, मैं आई एम सपोज्ड टू स्टे देयर फॉर टिल 2 months मैक्स। और वो नहीं दिसंबर देते के शुरू वो तक वो बहुत देने के मसला लिए कोई तैयार ही नहीं है, क्योंकि दे रहा है, देन दे आर चार्जिंग अराउंड €1,100 ये per yeah month, and I am that's not going to pay that much, of That's a course. lot. Like यहाँ पे भी ना Exactly. यहाँ पे पहला फिल्टर था डच दूसरा फिल्टर था Yeah, यूरोपियन तीसरा फिल्टर yeah, था मे बी सम सॉर्ट ऑफ वाइट चौथा फिल्टर yeah, था फीमेल yeah, और पांचवा फिल्टर था वो ब्राउन बेचारे इंडियन पाकिस्तानी लड़के सिंगल जो बेचारे क्योंकि लाइक आई yeah, वाज टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ इंडियंस ऑन फेसबुक उनको भी नहीं मिल रहा yeah, था मुझे भी नहीं मिल रहा था आई डिड गेट अ प्लेस दो बिफोर दिस मैंने yeah, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनको एडवांस दे दिया था वो मेरी बैकअप प्लेस थी और वो यहाँ से मेरी राइट नाउ आई लिव लाइक 2 minutes अवे फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी लाइक yeah, मुझे यहाँ मुझे बाइक की भी जरूरत नहीं है मैं पैदल अभी तक ट्रैवल मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती एंड आई yeah, एम वेरी ग्रेटफुल लाइक आई गॉट इन टच विद असद एंड असद ने मुझे पूरा फिर बताया एंड देन फाइनली आई एम yeah, लिविंग बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार मतलब अभी भी यहाँ पे तकरीबन बहुत लोग होमलेस हैं अभी एज वी स्पीक yeah, यहाँ पे बहुत सारे लोग होमलेस हैं बहुत सारे लोगों ने अपनी ऑफर्स को रिसेंड कर दिया है यूरोपियंस तो चलो करके ट्रेन पकड़ के वापस चले जाएंगे बट जो बेचारे नॉन ईयू वाले हैं वो yeah, तो वो कहाँ जाएंगे? इस प्रोसेस से आए हैं उनका तो वापस जाना पॉसिबल भी नहीं है एंड मौसम एग्जैक्टली। इट्स वेरी हार्ड एंड पता है आई थिंक यूरोप में ना थोड़ी ये ब्यूरोक्रेसी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि बहुत without है। a या without a rental agreement and a residential address I don't get my BSN without a BSN I या don't get a bank account without a bank या account I can't have insurance और या मतलब फिर वो और फिर I need to have a GP as well मैं 3 दिन से या GP ढूंढ रहा हूँ मुझे कोई लेने को तैयार ही नहीं है सारे इंग्लिश GP यहाँ पे बंद हो चुके हैं यार अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं मुझे जरूरत तो नहीं है मुझे इधर इधर मेडी कवर नहीं है। यार मेरी इंश्योरेंस है स्टूडेंट इंश्योरेंस है ओके। बट you have to have a GP as well in या Groningen फॉर general इंस्टेंस जैसे practitioner ये हमारा भी था, तो यूजुअली हर कंट्री में मेडी कवर होता है, वो प्राइवेट प्राइवेट होता है। तो okay जस्ट या इफ यू कैन फाइंड दैट, तो मेडी कवर से कर लो, पर आई डोंट नो कि इधर है या नहीं। एलआरएस है, मेडी कवर है, ये I'll मेन जो ये मेन है सारे जो I'll find यूरोप में that होता है। out. Student insurance तो या मेरी AON है. I think यूरोप में ज्यादातर पता नहीं मैंने जब रिसर्च की थी तो अगर ये वाली स्टूडेंट इंश्योरेंस इज वैलिड फॉर योर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस ओनली, तो फिर ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स नहीं कवर करेगी, प्राइवेट वो नहीं करेगी। जैसे that's हंगरी में good. हमारा होता था कि हमारा सिर्फ गवर्नमेंटल वैलिड था, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, I've never हॉस्पिटल्स में, actually डॉक्टर्स में। read मतलब मैंने पढ़ा नहीं है कभी उस इंश्योरेंस ट्रस्ट क्योंकि मी, ये इंश्योरेंस बहुत काम आएगी। I अभी know इंश्योरेंस that मिली है, सारा हेड टू टो सब कुछ करवा लो। मैं तो यही करती हूँ, ये हेड टू टो। यार हाँ but like ये सब
जरूरी है। पता है लाइक पाकिस्तान में ना हमें ये चीज़ों के, खैर मुझे तो कभी, मैंने तो कभी डॉक्टर, मैं तो घर पे डॉक्टर होते थे तो सारी चीज़ें वो कर या लेते थे, हमें बट मेरा लाइक भी यही था। इस तरह की रेगुलेशंस और फॉर्मेलिटीज़ ना, मतलब मैं ना पाकिस्तान में, यूएस में मेरे कुछ दोस्त पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, उनको बता रहा होता हूँ कि जी मेरा बैंक अकाउंट, बीएसएन और ये रेंटल एग्रीमेंट, और वो कहते हैं क्या या बातें कर रहे हो, मतलब ये सब हमने तो नहीं किया, हम भी बाहर पढ़ रहे हैं। अच्छा, if you are here then you can also open Revolut, it's very nice. I did. I've already done that. Like सबसे Yeah, पहले तो मैंने आगे PayPal बनाया अपना, and yeah. then मैंने Revolut बनाया. Revolut का ये सीन है कि यहाँ student accounts में you don't get a Visa card, तो you get a Maestro card. I'm not sure how is it in Hungary. Basically it depends on the country that you are in. तो नेदरलैंड जैसे बेल्जियम में भी था कि माइस्ट्रो कार्ड मिलता है, जो और नेदरलैंड बेलिफिक्स अभी रीजन है, जर्मनी, सॉरी, या लग्जमबर्ग, बेल्जियम, इस तरह का कोई सीन है, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट. अच्छा, वो बेल्जियम में भी माइस्ट्रो मिलता था। फॉर इंस्टेंस जैसे मेरे पास अभी वीजा कार्ड है, और मेरा पहले मेरे पास होता था मास्टर कार्ड। हंगरी में जब मैं थी तो मेरे पास मास्टर कार्ड था, मेरा कार्ड ऑफ कोर्स चोरी हो गया वियना में। फिर मैंने या पोलैंड के उसमें अप्लाई किया था, तो फिर मुझे मिला वीजा। एंड जब मैं बेल्जियम में थी तब मुझे माइस्ट्रो मिल रहा था। सो इट डिपेंड्स रियली ऑन द कंट्री दैट यू आर इन। अगर इफ यू चेंज योर एड्रेस रेवोलूट में, टू बी ऑनेस्ट रेवोलूट इज वेरी नाइस। मेरे पास कोई या फिजिकल बैंक अकाउंट नहीं है, मेरे पास सिर्फ रेवोलूट है। you just do this. Just one more thing before या we end, because we're almost at an hour. या About work opportunities, I'm sure a lot of people will be interested in that. देखो, एक तो जो मेरे एक्सपीरियंस है कि जिस तरह हम नॉर्थ या अमेरिका में पैसे कमा सकते हो ना कैश जॉब्स करके, दैट्स, आई वोंट recommend that in Europe from my own experience. या But जैसे for the Netherlands right now I have applied for a delivery job. I'm sure you know वो जो पूरे यूरोप में ही है कि the takeaway.com, and अब यहाँ पे या ना I need a TWV, that's basically a permit to The work tax, 16 hours per week. Is it the yeah. same in Eastern and in Germany and in other places as well? क्योंकि अभी In तक तो process Hungary, है. yeah, in Hungary, you didn't really need a permit to work. If you have the student visa, up automatically, I think it was 24 hours per week that you can अच्छा, work, and you अच्छा, had to file your taxes. आपको अपने टैक्स लाइक वो करना था, लेकिन जिस कंपनी के थ्रू आप काम करते थे या करते थे, वो कंपनी यूजुअली आपके बिहाफ पे कर देती थी फाइल। okay. अब ये अलग बात है कि लोग ऑफ कोर्स दे यूज्ड टू ओवरवर्क। आई हैव डन दैट एज वेल, आई हैव ओवरवर्कड टू। एक दफा आप काम करना शुरू हो जाओ, आपको नजर आता है कि पैसा आता है, देन पैसे यू आ रहे जस्ट हैं. कैन स्टॉप। एक चीज आई वुड Yeah. लाइक टू मेंशन दैट आई फील लाइक मैंने भी किया है। इट्स अ थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड दैट मैंने देखा हर जगह पाकिस्तानीज, दे इंक्लूडिंग मी, we always opt for like इस तरह हो गया, restaurant jobs, delivery jobs, working in the factories. And whereas when I compare ourselves to the Indians, they're always opting same class, same thing. They're always opting for higher jobs like multimedia agency में काम कर रहे हैं, IT Academic company में काम academic का, positions. academic उसमें, चाहे इंटर्न हो, चाहे बेसिकली मिनिमम वेज मिल रही हो, बट दे वुड स्टिल डू दैट। एंड आई, ये बात मुझे नजर आई, हंगरी में भी आई, मुझे बेल्जियम में भी नजर आई, काफी जगह में देखा ना। लाइक कि हम पाकिस्तानी व्हाई आर वी लाइक ऑप्टिंग फॉर फिर इस तरह के जॉब्स। लाइक ओके वी नो लोगों की मजबूरी भी होती है, 100% आई एग्री। काफी ज्यादा हंगरी में थे जो घर भी पैसे वापस भेजते थे, लेकिन मैं कहती थी कि हम लोग इतने स्किल्ड हैं, हम लोग इतने क्वालिफाइड हैं, देन व्हाई कांट वी जस्ट अप्लाई फॉर दोस जॉब्स एज वेल। It's, एंड yeah, आई डिड द सेम थिंग दैट मैंने भी, आई वर्क इन रेस्टोरेंट काफी टाइम। हंगेरियन पुलिस के साथ भी वो होता था, ओकेजनल होता था, वो कोई फिक्स्ड टर्म नहीं था, वो ओकेजनल था, जब भी माइग्रेंट्स आते थे तब करती थी। पर मैं बस यही, आई जस्ट हैड दिस थॉट दैट आई डोंट नो इफ yeah, यू नोटिस that's, दैट दिस एज वेल और नॉट। यहाँ पे ना, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि परमिट के बगैर मुझे बहुत लोगों ने या रेकमेंड करा है, मुझे लिटरली या लोगों ने ऑफर्स किए हैं कि कर लो, मसला नहीं है या कैश, मैंने कहा नहीं, अंटिल लाइक 4 हफ्ते हो गए हैं, एक हफ्ता और या में शायद मुझे परमिट मिल जाए, आई जस्ट वांट गेट इनटू द सिस्टम, ये या जॉब छोड़ के कल को कोई और करूंगा वो, अच्छा यहाँ पे एम्प्लॉयर आपका परमिट अप्लाई करता है, आप खुद नहीं करते, या तो जो ओके स्मॉल एजेंसीज है ना, क्लीनिंग रेस्टोरेंट्स, वो इतने बड़े होते नहीं है या कि वो आपका पेपर वर्क फाइल करें, फाइल तो अभी करें। इनके साथ मैंने अप्लाई किया हुआ है, इफ आई डोंट गेट इन तब होपफुली मैं कहीं और अप्लाई करूंगा, बट आई एम आल्सो लर्निंग डच, आई एम A1 right now, गुड but like लक। yeah, it's like it's super hard, but it's, I think it's easier than German. I बहुत सिमिलैरिटी है उसके अंदर या क्योंकि मैंने थोड़ा सा फील किया था, बट आई वुड ऑल्सो रिकमेंड फॉर दोज हु आर वाचिंग के अगर आपके पास पैसे हैं, लाइक मुझे तो ये लगता है, इफ यू कैन सैक्रिफाइस ऑन अदर थिंग्स, मतलब if you can live in a small place, you don't या want to own a car back home, you don't want to own a या big house back home, and या for the time being just focus on your studies for a year or या 2 year, and then like then make enough money to, क्योंकि मेरी ideology है make enough money to sustain myself. I'm a very
minimalist sort of a person. मैंने literally यहाँ पे Yeah. जितना extra सामान था ना मैंने सारा या तो बेच दिया है या कहीं Yeah. donate कर दिया या आगे पीछे कर दिया. Yeah. I don't want extra stuff in my life. And Yeah. it's मतलब यार पैसे कुछ ना कुछ I personally think हो जाता है. I'm talking from Yeah. I acknowledge the fact that मैं एक privileged point of view से बात कर रहा हूँ, but I feel like बहुत सारे इंडियंस की भी जैसे you talked about वो भी थोड़ा सा टारगेट करते हैं कि जैसे स्टूडेंट असिस्टेंटशिप्स, एकेडमिक रिसर्च, Yeah. कोई एक आध जैसे मेरा गोल है कि मेरे पहले साल में अगर मैं कोई पेपर एक दो जर्नल्स में पब्लिश कर लूँ, दैट वुड मुझे उसके पैसे नहीं मिलेंगे, लाइक वो मेरी Yeah. आगे पूरी जिंदगी मेरे लिए वो एक अचीवमेंट होगी. काम आएगा. Yeah. तो अभी यही है. एंड अगेन मुझे अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट नीड द मनी फॉर नाउ, बट लाइक ये जो मैं अगर करूंगा अभी ना काम, इट्स जस्ट फॉर ट्रैवलिंग. मैं अपने घर पे Yeah. बताता हूँ कि मैं वीकेंड के लिए अगर कहीं जा रहा हूँ तो वो यही कहते हैं कि लाइक तो मैं बस ये जो ट्रैवलिंग है ना ये घर के पैसों से नहीं करना चाहता. I ट्रैवलिंग मैं करूंगा understand exactly. अपने पैसों से. आई रियली वांट टू ट्रैवल, लाइक आई डोंट मिस आउट ऑन Exactly दिस why अपॉर्चुनिटी. I kept on working in the restaurant for 2 years. कि जो एक्स्ट्रा पैसे आते थे वो मैं खर्च करती थी अपनी ट्रैवलिंग के लिए. Because जब आप एक दफा बाहर आते हो, स्पेशली जब आपको स्कॉलरशिप, फॉर इंस्टेंस इफ यूर ऑन अ स्कॉलरशिप, लाइक मेरा ये था दैट मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी घर से पैसे मांगने में, और यार आती है लाइक 3 years मतलब या पैसे इट्स मैंने कोई एक दो बार ही मांगे होंगे. बट द थिंग इज दैट I co- I'm also acknowledging that I'm talking from a very privileged background, and I don't mean to कि मैं किसी को इस तरह वो करूँ. But like मेरे डैड ने मुझे क्रेडिट कार्ड्स के साथ भेजा था, and that was a very गंदी, बहुत बुरी आदत थी. I इस तरह have नहीं one as करना well, चाहिए था. but मैं कोशिश इस करता तरह हूँ नहीं कि करना मैं चाहिए उसको था. मैंने ना उसको ना दूसरे यूज वॉलेट कर, पे रखा हुआ है. मैंने उसको अपने उसको फेंक प्राइमरी दो, वॉलेट पे उसको नहीं रखा. छुपा दो, उसको यार काट दो, उसको एक्सचेंज रेट इतना पड़ता है, मतलब 172 इसको पे डॉलर हो मत गया as we इस्तेमाल speak. करो. या I saw this morning. बट It's a उसको lot. फेंक दो, उसको मत वो करो. एंड टू बी ऑनेस्ट, ये बात वैसे मैंने लाई तो कि हम लोग क्यों हमेशा इस तरह की जॉब्स वो करते हैं, लेकिन मैं हर किसी को इनकरेज करूंगी कि इस तरह की जॉब्स भी करो. हम लोग अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में ये जॉब्स बहुत देर लुक यार आप डाउन अपन के ऐसी वहां नहीं पे भी करनी कर चाहिए. सकते हो आप, मतलब लाइक देयर इज एग्जैक्टली नथिंग रॉन्ग अनलेस यू लेकिन आर मेकिंग हमारी मनी. सोसाइटी इस तरह है ना कि ओ ये तो जॉब कर रहे हैं, तो लाइक अभी आई वुड किल टू वर्क इन सबवे. लाइक मुझे इतना शौक है सबवे में Yeah, काम just करने make का. sandwiches for living, like मतलब what's wrong in that? मुझे मुझे And बहुत शौक है. yeah, बट लाइक द थिंग इज दैट इन जॉब्स के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. ट्रस्ट मी, that's जो true. आपकी लाइफ लेसन्स होती हैं, आई एम श्योर दैट after whenever next time when we speak, when you're done with your the delivery job or yeah, whatever job you're doing, I'm sure that you will You say get that to I learned a lot from these you get to jobs. And learn a इन्हीं lot. jobs के साथ आपको आपकी skills मिलती हैं जो आप बाद में जाके flaunt कर सकते हो अपनी That's true. major companies में. That's true, क्योंकि यहाँ पे अभी वेदर सर्दी शुरू हो गई है, 8 या 9 है, Yeah. एंड बारिश बिल्कुल खतरनाक वाली शुरू हो गई है. एंड आई वाज जस्ट Yeah. द अदर डे लाइक माय पेरेंट्स वर टेलिंग मी कि यार हम वेदर देख रहे हैं एंड यू आर यू श्योर यू कैन डू अ पुल ऑफ अ डिलीवरी जॉब. मैंने कहा लाइक ट्राई करने में क्या जा रहा है, मतलब Yeah. कराची में अगर बारिश बर्दाश्त कर सकते हैं हम, तो यहाँ की So बारिश कोई हमारा मसला नहीं है. लाइक जस्ट वन मोर थिंग, yeah. I don't have a job right now. मैं थोड़ी बहुत freelancing करता हूँ, लेकिन वो मुझे PKR में पैसे मिलते हैं, sort of negligible. I might try to do something in Europe as well, but Yeah. so I actually signed up with I'm sure अगर people are watching and are interested, I signed up with a lot of experiments यहाँ पे, psychology के, biology के, clinical experiments, and they pay you 10 euros per hour, and I've made Yeah. good money. I've actually financed one of my trips through that money. और Yeah. मैंने पाकिस्तान में कुछ लोगों को बताया, एंड देयर लाइक मतलब तुम क्या मतलब कि गिनी पिग बन गए उनके वहां जाके. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, मतलब कोई वो मेरे Yeah. ऊपर कोई मुझे वैक्सीन नहीं लगा रहे थे उन एक्सपेरिमेंट्स में. जैसे यू हैव टू प्ले गेम्स, यू हैव टू फिल आउट सर्वेज, Yeah. they put you in a lab environment for an hour without phone, with headphones on. You have to play like whack-a-mole or something like this, and you get 10 euros per hour. Yeah. So that's also a very good point. I'm not sure Yeah. और European countries में होता है, but यहाँ जैसे Groningen में तो Yeah. paid research experiments से you can make like 100 per month at least. Yeah. Yeah. और yeah, but like work itself, like कुछ ना कुछ I believe हो जाता है. You just Yeah. have to be, आपको अपनी ईगो अगर आप साइड पे रख सकते हो, आई रख थिंक दो. यू कैन डू बेटर. लाइक कुछ लोग मैंने यहाँ पे देखे हैं जो बताते नहीं है Yeah. कि हम जॉब्स कर रहे हैं. Yeah. जैसे you were very up forthcoming मैंने about शुरू में whatever नहीं you're doing. बताया था. मैंने शुरू But में like नहीं अपने पेरेंट्स को बताया and था. I'm It was मतलब I have that thing कि यार मैं अगर इंस्टा पे भी स्टोरी लगा दूं आई एम डिलीवरिंग समथिंग ऑन उबर और थूस बिजॉर्ग, तो मतलब that's fine by me. मतलब मुझे कोई Yeah. and yeah, that's the kind of stigma. And just one more thing, if you have time, Yeah. Ruhi, Yeah. Go. Yeah. just Yeah. one Go more ahead thing. for sure. Yeah. We have like in the last few minutes, when I was coming here, I'm sure you've experienced it as well, but आपका तो scholarship था.
पाकिस्तान में एक परसेप्शन है जो कि मेरे लिए बहुत कॉलोनियल है कि अगर पढ़ने जाना है तो यूके जाना है, यूएस जाना है, Yes. वरना Yes. पढ़ने नहीं जाना, क्योंकि वो 3 इडियट्स वाली डिग्री अगर दीवार पे लगानी है तो वो एलएससी की होनी चाहिए, आईवी लीग्स की होनी चाहिए. एंड दैट परसेप्शन परसिस्ट इन आवर एजुकेटेड लॉट इन आवर Yes, सर्कल्स. I agree. क्योंकि पता है नेदरलैंड्स बोलो, किसी को जर्मनी बोलो, कुछ बोलो, वो कहते हैं यार वो लंदन वाली बात नहीं है या न्यूयॉर्क वाली बात नहीं है. और आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू टू एड्रेस. बहुत सारे स्टूडेंट्स आई नो, आई एक्चुअली नो अ गाय, आई वोंट नेम हिम, जिसकी फैमिली में अगर आपने बाहर पढ़ने जाना है तो सिर्फ ऑक्सफोर्ड जाना है, वरना हम आपको पैसे नहीं देंगे चाहे जितने मर्जी हमारे पास पैसे हों. Yeah. कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड. तो ये थिंकिंग के बारे में बात करना आई थिंक जरूरी है थोड़ी सी. ये आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. मैंने ये बात अपने एक वेबिनार में भी की थी, हंगरी, जब मैं हंगरी में थी, उन Yeah. वेबिनार में, कि भाई मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों colleagues students whoever is watching at that time, and this is exactly what I said, move away from the UK, from the US, from Canada. इससे थोड़ा हटो and explore more options, because यूरोप में पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ऑफ कोर्स यू हैव फ्री ट्रैवलिंग, नॉट फ्री, लाइक फ्री एक्सेस टू बॉर्डर्स. Free access, yeah, right. ये यू हैव इजी एक्सेस, फ्री एक्सेस टू बॉर्डर्स, एंड आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. फॉर इंस्टेंस द थॉट दैट यू सेड के बस में बैठे हुए थे, यू जस्ट क्रॉस द बॉर्डर, एंड इस तरह की ये आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत 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 जरूरी अच्छा है. है. एंड ऐसा नहीं है कि यूरोप में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है. यूरोप में वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्टेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं. यू कैन टॉक Yeah, अबाउट CEU. exactly, like मतलब माय यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में लोगों ने सुना नहीं है, बट इट्स लाइक इन टॉप 100 ऑफ द वर्ल्ड. लाइक मतलब एग्जैक्टली, दैट्स यूरोप में बहुत, ऐसा नहीं है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, आपको बहुत बेहतर क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है. परहैप्स आपकी यूनिवर्सिटीज में, अगर आपको इतना ही है कि कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ऐसी बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज में जो एफिलिएटेड होती हैं कैम्ब्रिज से और इस you तरह, can go on और आईवी exchanges, लीग्स यार. में. You can go to North एग्जैक्टली. America on exchanges. And Exactly. that's And like people don't really explore the potential of this region, especially in our Pakistani market right now. एंड मैंने ये भी देखा दैट नहीं. पीपल, इधर लोग आते हैं पाकिस्तान से, बल्गेरिया में मैंने देखे हैं काफी स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं डायरेक्ट पाकिस्तान से टू स्टडी मेडिसिन, जो उनको मेडिसिन में नहीं मिलता एडमिशन, एंड प्रोबेबली परहैप्स उनके लिए चीपर है यहाँ पे टू स्टडी देन टू स्टडी बैक इन पाकिस्तान एंड पे hefty amount for Pakistan में you private. have to pay like, मतलब I won't काफी name, but ज्यादा. like I'm very much close to this field. मतलब लेकिन पता है if any medicine student is listening, from what I know about the politics that's happening in Pakistan or around PMDC and everything, बहुत मसले होंगे Yeah. उनको जब वो वापस जाएंगे. मे बी वो यहाँ पे प्रैक्टिस करें, that's fine. I know a Yeah. few people, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर है that actually Yeah. funds people यहाँ पे पढ़ने के लिए, मेडिसिन रिसर्च करने के लिए. बट इस तरह के मसले हैं, लाइक Yeah. लोगों का परसेप्शन अबाउट यूरोप, लोगों का परसेप्शन अबाउट द वे ऑफ लाइफ ओवर हेयर, उसमें बहुत It's सारी आई just very थिंक different. कोर्स करेक्शन की जरूरत है. क्योंकि पता है आई पर्सनली थिंक हमारा बहुत सारा डायस्पोरा यूएस यूके में रहता है, लेकिन इतने लोग यूरोप में नहीं रहते, और अगर रहते भी हैं तो फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं. जैसे आई डोंट नो एनी फैमिली मेंबर लिविंग इन वियना, मतलब पीपल Yeah. डू हैव दोस, बट लाइक Yeah. तो वो भी पता है उनका बस वो एक अमेरिकन ड्रीम वाला उनके सर पे सवार होता है. Yeah. And to be honest, I just want to add one more thing. We have 6 Yeah. more minutes. I'll end at Yeah. 4:30 your time. And but Yeah. we have this thing in the Netherlands. I really want to talk about this. If you're planning to come to the Netherlands, right now the apartment I'm living in, if I'm 23 plus, the government pays half of my rent. I have to apply for that whole thing. मैंने किया हुआ है. Hopefully हो जाएगा. नहीं होगा तो I'm fine with it. But the government will pay half of my rent. And this apartment right now in New York or in London won't be less than $1,800 to $2,000 मेरे ख्याल Yeah. से. And मतलब मैंने लोगों को बताया नेदरलैंड्स के बारे में, और उनको पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट आपका आधा रेंट देती है, यूटिलिटीज नहीं देते, रेंट की जो प्राइमरी Rent. कॉस्ट Yeah. है. Yeah. ऐसा फ्रांस में भी है. Yeah, Yeah. 23, if you are 23 plus and your income and your capital is something like less than 300,000 euros, जो कि मैं जिंदगी Yeah. भर नहीं पैसे इतने कमा सकता, तो मतलब this is for इंशाल्लाह. you. इंशाल्लाह, बट लाइक अगर PhD करूंगा तब तो इतने पैसे नहीं कमा सकता जो मेरा मूड है. बट खैर, but like yeah, that's I think that's important, and I will be having more conversations around Europe with people. If you can connect me with them as well, just With let me know. Nasrullah, 100% I will. I Definitely, know you I will will. enjoy talking to him. I will. बहुत I ज्यादा. will. I will. Okay, I think we're almost at the end mark. I'll Yeah. just end it. It was great having Yeah. you. Same. And if you generally like, if whenever you're here in the Netherlands, you're always welcome. I'm sure you have Thank you. been here a lot more than me, but like, if you want anything, and
I think we can meet up soon as well. Yeah, Somewhere around if 100%. It would be very you're free. nice. Yeah, yeah. Okay, I'll just stop now.